जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Welcome back again my dear students. I am Hiral Sojitra and in this video we are going to discuss exercise 4.15 of chapter number 4 decimals. Over here we are going to discuss word problems. So make sure you must have your textbook with you because over here I have not put questions. Directly answers are there, but I have read questions for you. So when I will read, you will also read from your textbook along with me and try to understand each and every question and try to do again by your own to make it very clear. So let us start with the question number 1 of exercise 4.15. The first question is, I am reading from the textbook. You will also read along with me. A purse has 78 rupees and 3 coins of 50 paise each. Express the amount in the purse. Express the amount in the purse in rupees. आपको क्या करना है, जो रुपीज़ एंड पैसे में आपको अमाउंट दी है वो आपको टोटल रुपीज़ में कन्वर्ट करनी है। तो जस्ट सी over here we are given 78 rupees and 3 coins of 50 paise each. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3 coins of 50 पैसे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाउ मेनी 50 पैसे इज देयर इन द पर्स? तो टोटल 3 coins of 50 पैसे इज देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 50 विथ 3, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है. सी 3 मल्टीप्लाई विथ 50 पैसे, सो इट विल कम 150 पैसे. सो नाउ दिस 150 पैसे इज टू बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ एंड पैसे. नाउ रिमेंबर 1 rupees is equal to how many पैसे? 100 पैसे. So if you need to convert 150 पैसे, you have to divide 150 with 100, so you will get 1 rupee and 50 paise. So finally you have to add both the rupees, 78 rupees and 1 rupee and 50 paise. The amount will be 79 rupees 0.50 paise. So this is your answer. Now the next question is second one. A piece of cord is 6.95 meter long. A piece of cord is 6.95 meter long. Express its length in centimeter. What you have to do? You are given 6.95 meter long cord. ठीक है, you are given 6.95 meter long cord. These you have to convert in centimeters. Now remember, do you remember 1 meter is equals to how many centimeters? Yes, it is 100 centimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter. So if I wish to convert this amount into this meter into centimeter, then how should I do? So you have to simply multiply with 100. So directly multiply 6.95 into 100. So then you will get 6.95 centimeter.
then you will get 6.95 centimeter. Again I am telling you what you have to do. You have to simply given 6.95 meter and you have to convert it into centimeter. So 1 meter is equals to 100 centimeter. So what you will do, जो भी मीटर में आपको दिया है डेटा उसको आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. So this will be your answer, 695 centimeter. Now the third question given is Dolly purchased 78 grams 95 milligrams of gold. How many grams of gold did she buy? उसने कितना सोना परचेज किया. That you have to express in grams. Over here you are given that Dolly purchased gold. कितना परचेज किया? 78 ग्राम्स 95 मिलीग्राम्स. उसको आपको कन्वर्ट करना है सिर्फ ग्राम में. तो कैसे करोगे? तो इफ़ यू रिमेम्बर हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है, तब हमने डिस्कस किया था कि किलोग्राम इज़ अ बिगर यूनिट एंड ग्राम इज़ अ स्मॉलर यूनिट. नाउ ग्राम से भी एक छोटा यूनिट है, दैट इज़ मिलीग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. जैसे अब अभी हमने जैसे किलोग्राम ग्राम को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, सेम वे आपको ग्राम एंड मिलीग्राम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो 78 ग्राम को हम होल नंबर पार्ट में लिखेंगे, मगर डेसिमल वाले पार्ट में हाउ मेनी डिजिट्स वी रिक्वायर? 3 डिजिट्स वी रिक्वायर, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 milligram. But over here only 2 digits are given, that is 95. So what we will do? We will put simply 0 before 95. So it becomes 3 digit. So directly put 095 in the decimal part. And which unit you will place? Bigger or smaller? Yes, bigger unit. And over here in gram and milligram, gram is the bigger unit. So you will place gram at the end of the answer. Gram at the end of the answer. So your answer is quantity of gold in gram will be 78.095 grams. Now fourth question given is Ankita bought a purse for rupees 275.50, a wallet for rupees 450.50 and a bracelet for rupees 734.50. Find the total amount spent altogether by Ankita. Altogether by Ankita मतलब टोटली उसने कितने रुपीज स्पेंड किए. Ankita has bought purse, she has also bought wallet, she has also bought bracelet. ठीक है, तो तीन चीज़ें परचेस की है, तो उसके लिए अलग अलग अमाउंट शी हैज़ पेड. सो हमें क्या करना है? टोटल उसने कितना परचेस किया, कितने रुपीज़ स्पेंड किए, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम? यस, वी विल डू एडिशन. तो आपको सबको ऐड करना है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिटर्न कॉस्ट ऑफ ब्रेसलेट, दैट इज 734 रुपीज़ 0.50 पैसे. कॉस्ट ऑफ वॉलेट इज रुपीज़ 450 प्लस 50 पैसे. कॉस्ट ऑफ पर्स इज रुपीज़ 275.50 पैसे. सबको अभी ऐड कर दो तो यू विल गेट योर आंसर. सो अमाउंट स्पेंड ऑल टुगेदर विल बी रुपीज़ 1460.50. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट अस डिस्कस फिफ्थ वन. व्हाट इज द क्वेश्चन? अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज्ड रुपीज़ 260.48 for 6.4 kilometers. How much did he charge per kilometer? पर का मतलब एक. अगर वो 6.4 किलोमीटर्स के लिए चार्ज कर रहा है रुपीज़ 260.48, तो एक किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ चार्ज करेगा? ठीक है, तो वो हमें पर किलोमीटर फाइंड आउट करना है. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड पर किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर के कितने रुपीज़ होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू? यस, वी विल डू डिवीज़न. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि चार्जेस फॉर 6.4 किलोमीटर इज़ रुपीज़ 260.48. तो
So if you wish to find out per kilometer charges, then simply you have to divide total rupees divide with total kilometers. तो टोटल रुपीज़ कितने हैं हमारे पास? रुपीज़ 260.48 एंड टोटल किलोमीटर्स कितने हैं? 6.4. तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है कि कैसे इसका डिवीज़न करा जाता है एंड हाउ विल यू गेट आंसर. सो द आंसर विल बी रुपीज़ 40.70 और यू कैन ऑल्सो राइट रुपीज़ 40.7. बोथ आर इक्वल एंड दीज आर दी चार्जेस पर किलोमीटर. Now the sixth question given is Ritima has 100 rupees note in her purse. रितिमा के पास कितने पैसे हैं टोटल? 100 रुपीज़ है. ठीक है. She bought vegetables worth rupees 33 and fruits worth rupees 46.50. How much money she has now? अभी इसमें देखो, आप 1 by 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और एल्स आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, वॉट एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए जो भी आपको अमाउंट दी हुई है पहले तो आप इसको ऐड कर लो और फिर उसको वो एडिशन का जो आंसर आएगा दैट आंसर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी 100. तो लाइक दैट वे ऑल्सो यू कैन डू. यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस वे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रितिमा के पास टोटल कितने पैसे थे पर्स में? 100 रुपीज़ थे. फिर उसमें से उसने वेजिटेबल्स परचेस किए. कितने रुपीज़ के वेजिटेबल्स परचेस किए? 33 रुपीज़ के. तो पहले 100 को 100 में से 33 माइनस कर लो तो यू विल गेट 67 रुपीज़. अभी उसमें से उसने दूसरा क्या परचेस किया? फ्रूट्स परचेस किए. कितने रुपीज़ के फ्रूट परचेस किए? रुपीज़ 46.50. तो अभी 67 में से 46.50 माइनस कर दो तो यू विल गेट 20 रुपीज़ 50 पैसे. ठीक है, यू विल गेट रुपीज़ 20.50. तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स? रुपीज़ 20.5. ठीक है, बोथ आर इक्वल, 20.50 और 20.5. That is the amount left into her purse. Then seventh question is if 1 euro क्या है? It is a currency sign for the European Monetary Union. ठीक है, उसके लिए जो करेंसी यूज़ की जाती है वो यूरो में दिखाई जाती है. जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होता है वैसे वहाँ पे यूरो होता है. तो 1 euro कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर रुपीज़ 68.25. इसका मतलब होता है 1 यूरो की वैल्यू कितनी है हमारी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली? तो 1 यूरो के इक्वल टू होते हैं टोटल रुपीज़ 68.25. 1 euro is equals to 68.25 rupees. So what is the question? How many rupees can be obtained for euro 1000? तो for 1000 euro के लिए कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो what we will do? For 1 euro rupees 68.25 is there. If you want to find out the total money for 1000 euro, then what will you do? क्या करोगे आप? क्या करोगे? कुछ सोचो, याद करो क्या हमने किया था. यस, हम करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो जो 1 यूरो के लिए जो रुपीज़ दिए हैं वो रुपीज़ के साथ आप 1000 को मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो यू विल गेट आंसर इन रुपीज़. तो 4000 यूरो टोटल रुपीज़ कितने हो गए? रुपीज़ 68,250. दैट विल बी योर आंसर. नाउ सेम क्वेश्चन है 8. इन एक्सचेंज फॉर $100, $100 के सामने कितने पैसे मिलते हैं? हाउ मेनी रुपीज़ वी विल गेट? रुपीज़ 6725. हाउ मेनी रुपीज़ वी विल गेट? रुपीज़ 6725. हाउ मेनी रुपीज़ वर गिवन इन एक्सचेंज फॉर $1? तो $1 के कितने पैसे हो, कितने रुपीज़ हो गए? ठीक है, हमें $100 के रुपीज़ दिए हैं, दैट इज़ रुपीज़ 6725. तो हाउ मेनी रुपीज़ वी विल गेट फॉर $1? हाउ मेनी रुपीज़ वी विल गेट फॉर $1? तो उसमें क्या करना है? देखो, ऊपर वाले केस में 1 यूरो के रुपीज़ हमें दिए थे और हमें 1000 यूरो के फाइंड आउट करने थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया. ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसका उल्टा है. हमें $100 के रुपीज़ टोटल दिए हैं और हमें $1 का फाइंड आउट करना है.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। सो सिंपली यू हैव टू डिवाइड ₹6,725 विथ 100, तो यू विल गेट रुपीज़ फॉर दी $1। तो $1 के कितने रुपीज़ होंगे, ₹67.25। द 9th क्वेश्चन इज अ पाथवे इज 0.755 किलोमीटर लॉन्ग। अ पाथवे इज 0.755 किलोमीटर लॉन्ग। अ मार्कर इज पुट आफ्टर ईच मीटर, ईच मीटर मतलब हर 1 मीटर के बाद मार्कर रखा जाता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे मार्कर रखे जा रहे हैं। हाउ मेनी मार्कर्स वर पुट, तो फिर कितने मार्कर्स हमें रखने पड़ेंगे, कितने लंबे रास्ते में, 0.755 किलोमीटर लंबा रास्ता है, उसमें हमें कितने मार्कर्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको लाइव क्लास में डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी, फिर भी मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, समझना। ये एक रास्ता है, ये एक लंबा रास्ता है। ठीक है, अभी उसमें हमें मार्कर्स रखने हैं, उसमें हमें क्या रखने हैं, मार्कर्स। मैं ब्लैक कलर के रख रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा रोड के ऊपर येलो कलर के मार्कर्स रखे जाते हैं, तो सेम वे हमें मार्कर्स रखने, जैसे कि एक मार्कर रखा, दूसरा मार्कर रखा, तीसरा, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं मगर मार्कर स्ट्रेट ही होंगे। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना है, 1 मीटर। ये दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना है, 1, कितना है, 1 मीटर। ठीक है, मैं फिर से बना रही हूँ डायग्राम, देखना आप लोग। ये एक रास्ता है, कितना लंबा, 0.755 किलोमीटर। उसके बीच में हमें मार्कर्स रखने हैं, उसके बीच में हमें मार्कर्स रखने हैं। ठीक है, जैसे कि एक मार्कर हुआ, दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर, चौथा मार्कर, ऐसे स्टार्टिंग से रखने हैं। ये दोनों मार्कर के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना गैप है, डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस रहेगा इसका, 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर। 2 मार्कर के बीच का डिफरेंस है डिस्टेंस का। ठीक है, तो अभी हमें क्या पूछा है, तो ऐसे हमें कितने मार्कर्स रखने पड़ेंगे, तो ऐसे हमें कितने मार्कर्स रखने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको लेंथ ऑफ पाथवे दिया, दैट इज़ 0.755 किलोमीटर। तो पहले तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो उसके लिए आपको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा। सो द आंसर विल बी 755 मीटर। नाउ लेंथ बिटवीन 2 मार्कर्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्कर्स 1 मीटर हमें बोला गया है, 1 मीटर। तो अभी हमें अगर नंबर ऑफ मार्कर्स ढूंढने हैं, तो व्हाट वी विल डू, सिंपली वी विल डिवाइड लेंथ ऑफ द पाथवे विद द लेंथ बिटवीन 2 मार्कर्स। तो 755 डिवाइड विथ 1, तो यू विल गेट 755। तो टोटल 0.755 किलोमीटर लंबे पाथवे में आपको टोटल कितने मार्कर्स लगाने पड़ेंगे, कितने रखने पड़ेंगे, 755। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th one. On a cold drink bottle, its capacity is mentioned as 740 ml. एक कोल्ड ड्रिंक की कैपेसिटी कितनी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कैपेसिटी 740 मिलीलीटर। याद है हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड को हम लीटर एंड मिलीलीटर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसकी कैपेसिटी है 740 मिलीलीटर। इफ़ 10 सच बोटल्स आर एम्प्टीड इन ए एम्प्टी कंटेनर, मतलब कोई खाली सा जार है, उसके अंदर आप 10 बोतल एम्प्टी कर रहे हो, खाली कर रहे हो, मतलब सारी कोल्ड ड्रिंक वो जार के अंदर भर रहे हो। टोटल कितनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, 10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप एम्प्टी कर रहे हो जार के अंदर, मतलब वो 10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है उसको जार के अंदर आप पोर कर रहे हो। तो टोटल कोल्ड ड्रिंक कितनी रहेगी,
एक बॉटल की कैपेसिटी है 740 ml, इसका मतलब एक बॉटल के अंदर 740 ml कोल्ड ड्रिंक होगी। ऐसी 10 बॉटल में तो हमें कितनी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी? व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम? यस, मल्टीप्लिकेशन। तो 740 को हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल गेट 7400 मिलीलीटर। ठीक है, इतना हमें कोल्ड ड्रिंक मिला, मगर हमें आंसर किस में पूछा है? लीटर में पूछा है। तो हमें 7400 को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस, 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमने 1000 के साथ डिवाइड किया, तो हमें आंसर क्या मिला? व्हाट इज द आंसर वी विल गेट? 7.4 लीटर। ठीक है, हमें आंसर क्या मिला? 7.4 लीटर। अभी इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मिलीलीटर से लीटर में लास्ट में कन्वर्ट किया, आप ऐसे स्टार्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है कि कोल्ड ड्रिंक इन अ बॉटल दैट इज 740 मिलीलीटर। तो सीधा यहाँ मिलीलीटर को भी आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 1000। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। नाउ नंबर ऑफ बॉटल्स आर 10, तो कोल्ड ड्रिंक इन अ कंटेनर इज इक्वल्स टू 740 डिवाइड विथ 1000 मल्टीप्लाई विथ 10, तो दैट आंसर यू विल गेट इन लीटर। तो उसका आंसर होगा 7.4 लीटर। अभी देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना फ्रैक्शन 37/5, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप देखो कट कर सकते हो। ठीक है, एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से मैंने कट कर दिया, एक ज़ीरो यहाँ से और एक ज़ीरो ये 740 वाला मैंने कट कर लिया। तो अभी क्या बचा? 74 डिवाइड विथ 10। तो अभी आप इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ 7.4 एंड आंसर आएगा लीटर में। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज ईच सोप केक वेज 70 ग्राम। एक सोप केक, आप सोप भी बोल सकते हो। ठीक है, वो टिकिया, ठीक है, नहाने की हो या कपड़े धोने की, जो भी टिकिया है, वो एक सोप का वेट है 70 ग्राम्स। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ कार्टून कंटेनिंग 100 सोप केक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है? कार्टून कंटेनिंग 100 सोप केक, मतलब आपको टोटल वेट काउंट करना है। कार्टून का भी उसमें वेट आना चाहिए, 100 सोप का भी वेट आना चाहिए। तो पहले तो हमें एक सोप का वेट दिया है 70 ग्राम, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 100 सोप का वेट काउंट कर सकते हैं। यस, वी कैन डू। कैसे? तो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द 100। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑल द सोप केक्स इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई विथ 100। क्यों हमने मल्टीप्लाई 100 से किया? क्योंकि हमें 100 सोप का फाइंड आउट करना है, इसलिए। तो द वेट यू विल गेट दैट इज 7000 ग्राम। अभी 7000 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या आंसर आएगा? डिवाइड करो इसको 1000 से, चलो जल्दी। तो आंसर विल बी 7 किलोग्राम। नाउ सी व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड टोटल वेट, मतलब कार्टून का वेट प्लस सोप का वेट। ओवर हियर वी आर सेड दैट के एम्प्टी कार्टून वेइज 1 kg, मतलब खाली कार्टून का 1 kg वेट है, और भरे हुए कार्टून मतलब टोटल सोप का कितना वेट हुआ? 7 kg। तो सोप प्लस कार्टून दोनों को मिला के कितना वेट होगा? तो यस, वी हैव टू एड बोथ द वैल्यू। तो वेट ऑफ कार्टून कंटेनिंग 100 सोप केक्स इज इक्वल्स टू 7 + 1 दैट इज 8 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आप अच्छे से करना, समझ के करना, तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। नेक्स्ट इज 12th वन। 12th में क्या है? अजीत बोट $1000 एट ₹68.23 पर डॉलर, मतलब $1 की आपको वैल्यू बोली गई है कि $1 की वैल्यू कितनी है? ₹68.23। तो ऐसे अजीत ने कितने डॉलर परचेस किए? $1000। ठीक है, तो अभी हमें अगर $1000 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? यस, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करो कि कॉस्ट ऑफ $1 इज ₹68.23, तो कॉस्ट ऑफ $1000 विल बी ₹68.23 मल्टीप्लाई विथ 1000,
तो आपको आंसर मिलेगा ₹68,230। अभी ये तो उसने परचेस किए, खरीदे थे। अभी वो क्या कर रहा है भाई कि आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद ही सोल्ड द सेम, मतलब ये वो $1,000 उसने बेच दिए। कितने रुपीज़ में? तो ₹69.11 पर डॉलर। तब उसको कितने $1 के कितने रुपीज़ मिले? ₹69.11। तो उसको क्या मिला? उसको कितना प्रॉफिट मिला? उसने कितना कमाया? ये हमें देखना है। तो अभी उसने जब परचेस किए थे तब हमने रुपीज़ उसके फाइंड आउट कर लिए। तो $1,000 के रुपीज़ कितने हुए थे? ₹68,230। अभी वो बेच रहा है, तो बेचने के लिए उसने $1 के कितने प्राइस लिए? ₹69.11। तो अभी हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ $1,000 इज इक्वल्स टू ₹69.11 मल्टीप्लाई विथ 1000। तो आंसर आएगा ₹69,110। अभी हमें उसका प्रॉफिट देखना है। हमें क्या देखना है कि उसने कितना कमाया। तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर लोगे तो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टोटल गेन ऑफ अजीत इज इक्वल्स टू ₹69,110 माइनस ₹68,230। तो हिज गेन विल बी ₹880। उसने कितना कमाया? ₹880। ये उसका गेन है, ये उसका प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आपको समझ के ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अभी जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसमें मैं सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। ये रिवीजन एक्सरसाइज है पेज नंबर 335 के ऊपर। उसमें 10th वन, अ सूरज हैज़ ₹24.50। हिज मदर गेव हिम ₹22 मोर। उसके पास ₹24.50 तो थे ही, मगर एडिशनली उसकी मम्मा ने उसको 22 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ? तो फिर अभी उसके पास कितने पैसे होंगे? तो क्या करोगे आप? मैं आपको एग्जांपल दूँ। अगर आपके पास 30 रुपीज़ है और आपकी मम्मी आपको 10 रुपीज़ ज़्यादा दे देती है, तो अभी आपके पास कितने पैसे हुए? तो आपने क्या किया? एडिशन किया। 30 + 10 40। तो अभी आपके पास 40 रुपीज़ है। तो सेम वे हमें यहाँ पे करना है। सूरज के पास ऑलरेडी कितने पैसे थे? कितने रुपीज़ थे? ₹24.50। उसकी मम्मा ने उसको कितने रुपीज़ दिए? 22 रुपीज़ दिए हैं। तो उसको ऐसे अरेंज करो। आपको पता ही है डेसिमल्स को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। प्लेस वैल्यू किसी की चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमने ऐड किया, तो अभी उसके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं? ₹46.50। सिंपल एडिशन है। नाउ द नेक्स्ट इज 11th। अ कंटेनर कैन कंटेन 20 लीटर 60 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर कितना टोटल मिल्क कैरी कर सकता है? 20 लीटर्स 60 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल 5 सच कंटेनर हैव? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल 5 सच कंटेनर हैव? ठीक है, तो फिर अगर ऐसे 5 कंटेनर हम रख दे तो फिर कितने लीटर्स मिल्क उसमें समाएंगे? तो पहले तो आपको क्या करना है? ठीक है, आपको पहले जो भी डेटा दिया है वो लिख लेना है। तो कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर कितनी दी है हमें? 20 लीटर 60 मिलीलीटर। ठीक है, अभी हमें पता है कि मिलीलीटर में 3 डिजिट्स कंपलसरी है, तो 60 के आगे 0 लगा दो, तो 20 लीटर 060 मिलीलीटर हुए। अभी कितने कंटेनर में हमें पूछा है? 5 कंटेनर में। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। इसको ये जो आपको वैल्यू दी है लीटर मिलीलीटर में, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द आंसर। तो कैपेसिटी ऑफ मिल्क कंटेन्ड इन 5 कंटेनर विल बी 100 लीटर 300 मिलीलीटर। 100 लीटर एंड 300 मिलीलीटर। अभी लीटर मिलीलीटर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के टाइम पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो भी स्मॉलर यूनिट है उसके आगे जितने भी डिजिट्स दिए हैं वो 3 है या नहीं। तो यस, ओवर हियर वी आर गिवन 3 डिजिट्स। 300 मतलब 300, 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम सिंपली उसको लीटर वाले को होल नंबर पार्ट में लिख लेंगे एंड मिलीलीटर को डेसिमल पार्ट में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर होगा 100.3 लीटर ऑफ मिल्क। तो
तो हमारा आंसर होगा 100.3 लीटर्स ऑफ मिल्क। हाँ, 100.300 एंड 100.3 दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ के ये सारे वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो वाइल वॉचिंग द वीडियो यू विल सॉल्व द ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड you will note down into the classwork like same it is given. For that PDF will be sent to you, PDF will be sent to you। जो मैं अभी दिखा रही हूँ उसी की PDF मैं आपको भेजूँगी, उसमें से देख के स्टेप बाय स्टेप with each and every word you have to write। ठीक है, मगर आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन भी लिखना है और वो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से देख के लिखोगे। पहले क्वेश्चन लिखोगे, बाद में आंसर लिखोगे। ठीक है, सो कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, देन एंड देन यू विल गेट मास्टरी।